Guys, good evening to all of you. This is Rupali. Welcome all of you to the class. This is the NFL pharmacist exam class. आज डिस्कस करने वाला है इस क्लास में HAP के क्वेश्चंस फ्रॉम 1 to 30. ये क्लास आपके अपकमिंग सारे एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट यूज़फुल है, जैसे कि कारागृह एग्जामिनेशंस, RRB, DSSB, DMER, MHSRB का तो एग्ज़ाम हुआ है. एंड इस क्लास में हम इस बैच में हम डिस्कस करेंगे 3000 प्लस MCQ. सो दोज हु आर न्यू टू द चैनल को सब्सक्राइब करना है एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती जाए. देन जिनको RRB के लिए, कारागृह एग्जामिनेशंस के लिए, देन NFL के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए, टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, आप ज्वाइन कर सकते हो. लिंक गिवन है इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज पिन भी किया है टेलीग्राम लिंक. ठीक है, move on to the questions. So the first question in this class is that oxygen enter a cell via. The first one filtration, second one diffusion, third one osmosis, and the last one active transport. Which is the correct one? Oxygen enter a cell via. किससे enter होता है? तो ये होता है diffusion. क्या होता है? Diffusion. Oxygen enter a cell via diffusion. Option C is the correct one. Next question number 2. A term used to cell eating is. The first one exocytosis, second one pinocytosis, third one phagocytosis, and the last one none of the above. Which is the correct one? The term used to cell eating, that is होता है phagocytosis. क्या होता है? Phagocytosis. Option B is the correct one. Next, wait for a second. Next question number 3. Which of the following require energy? The first one active transport, second one osmosis, third one passive transport, and the last one diffusion. Which is the correct one? Which of the following require energy? तो किसे require होती है? ये होती है that is active transport. किसे? Active transport. Option A is the correct one. Which one is correct? Option A is the correct one. Next question number cell. In a cell, protein synthesis occur in. The first one mitochondria, second one lysosome, third one nucleus, and the last one ribosome. Which is the correct one? In a cell, protein synthesis occur in. कहाँ पे occur होता है protein synthesis? तो ये होता है ribosome. जिसमें ribosome. Option D is the correct one. Next question number 5. Which of the following is not found in cell membrane? Which of the following is not found in cell membrane? The first one cholesterol, second one phospholipid, third one protein, and the last one galactose. Which is the correct one? Which of the following is not found in the cell membrane? तो ये होता है that is galactose. क्या होता है? Galactose. Option D is the correct one. Next question number 6. The cell of the human body obtain most of the energy from. The cell of the human body obtain most of the energy from. कहाँ से obtained होती है? Carbohydrate, protein, fats, none of the above. Which is the correct one? The cell of the human body obtain most of the energy from होता है that is carbohydrate. क्या होता है? Carbohydrates. Option A is the correct one. Next question number 7. Which ion is the highest concentration in the cell? Which ion is the highest concentration in the cell? The first one calcium, second one sodium, third one magnesium, and the last one potassium. Which is the correct one? Which ion is in the highest concentration in the cell? So which is the correct one? ते होता है that is potassium. Option D is the correct one. Next question number 8. Respiration in cell is mainly governed by. The first one vacuoles, second one cytosol,
third one mitochondria, and the last one Golgi apparatus, which is the correct one. तो respiration in the cell is mainly governed by होता है that is mitochondria. Option C is the correct one. Next question, question number 9. How many chromosomes present in human cell? तो कितना होता है? टोटल क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं 46. कितने कितने पेयर्स के होते हैं? 23. 23. सो द ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. हाउ मेनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन सेल? कितने होते हैं? ते होते हैं दैट इज 46. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. विच आयन इज, हुआ है क्या क्वेश्चंस? विच आयन इज इन द हाइएस्ट कॉन्सेंट्रेशन आउटसाइड पूछा है, आउटसाइड ऑफ द सेल. Which ion is in the highest concentration outside of the cell? The first one magnesium, second one sodium, third one calcium, and the last one potassium. Which is the correct one? Which ion is in the highest concentration outside of the cell? That is होता है sodium. क्या होता है? Sodium. Option C is the correct one. Next question, question number 11. What is the normal pH value for body fluids? What is the normal pH value for body fluid? The first one 7.15 to 7.25. Second one 7.35 to 7.45. Third one 7 to 7.35. And the last one 7.55 to 7.65. Which is the correct one? Normal pH value for the body fluids होता है that is 7.35 to 7.45. So the correct option is option number B is the correct one. इसके बाद आपको स्किन का भी पूछा जा सकता है. तो स्किन का pH कितना होता है? स्किन का होता है that is 6.4. कितना होता है? 6.4. सलाइवा का कितना होता है? सलाइवा का pH कितना होता है? तो ये होता है 6.7 to 7.4. कितना होता है? 6.7 to 7.4. एवरेजली इसको 7 भी बोला जाता है. इन एन एवरेज 7. ठीक है. स्वेट का कितना होता है? pH ऑफ स्वेट कितना होता है? स्वेट का pH, तो स्वेट का pH होता है 4.3 to 4.7. कितना होता है? 4.3 to 4.7. देन मिल्क का कितना होता है? तो मिल्क का होता है 6.5 to 6.7. कितना होता है? 6.5 to 6.7. ब्लड का कितना होता है? तो ब्लड का होता है 7.35 to 7.45. ठीक है. उसके बाद लैक्रिमल सिक्रीशन का भी पूछा जाता है. टीयर्स में जो होता है हमारा लैक्रिमल सिक्रीशन, उसका भी पूछा जाता है. तो ये होता है 7 to 7.4. कितना होता है? 7 to 7.4. ठीक है. यूरिन का कितना होता है? यूरिन का होता है 4.5 to 8. कितना होता है? 4.5 to 8. उसके बाद गैस्ट्रिक स्टमक का जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसके बारे में भी पूछा जाता है. तो ये होता है 1.5 to 3.5. कितना होता है? 1.5 to 3.5. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. पावर हाउस ऑफ सेल इज, सबसे आसान क्वेश्चन है. किसे बोला जाता है पावर हाउस ऑफ सेल? तो ये बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया. पावर हाउस ऑफ सेल इज नोन एज माइटोकॉन्ड्रिया. लाइसोसोम को क्या बोला जाता है? आप बताना. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फाइब्रस white fibrous tissue are present in? White fibrous tissue are present in. The first one bone, second one ligament, third one both A and B, and the last one bone. So which is the correct one? White fibrous tissue are present in. कहाँ पे present होता है? तो white fibrous tissue जो होता है ये ligament में भी present होता है as well as bone also. Sorry, ligaments and tendon. Both ligaments and tendon कहाँ पे present होता है? The option C is the correct one. A and B, that is tendon and ligaments. Next question, question number 14. Fluid connective tissue is, the first one fibrous cartilage. Fluid connective tissue is fibrous. Second one cartilage. Third one blood. And the last one is that फाइब्रस कार्टिलेज कर लेना. एक फाइब्रस कार्टिलेज. सो विच इज़ द करेक्ट वन?
फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है दैट इज ब्लड. क्या होता है? ब्लड. ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू इज ब्लड. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. Ciliated epithelium is present in. Ciliated epithelium is present in the first one blood vessel, second one salivary gland, third one respiratory tract, and the last one alimentary canal. Which is the correct one? Ciliated epithelial is present in होता है that is respiratory tract. Option C is the correct one. Next question. Question number 16. Hardest connective tissue is. कौन होता है इनमें से hardest connective tissue? The first one lymph, second one bone, third one blood, and the last one adipose. Which is the correct one? हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू में आता है दैट इज बोन. क्या आता है? बोन. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 17. लूज टिश्यू विच कंटेन द फैटी सब्सटेंसेस. लूज टिश्यू विच कंटेन द फैटी सब्सटेंसेस. द फर्स्ट वन lymphoid टिश्यू, सेकेंड वन adipose टिश्यू, थर्ड वन रेटिकुलर टिश्यू, एंड द लास्ट वन white fibrous टिश्यू. विच इज द करेक्ट वन? लूज टिश्यू विच कंटेन द फैटी सब्सटेंसेस. तो ये होता है दैट इज एडिपोज टिश्यू. क्या होता है? एडिपोज टिश्यू. ऑप्शन एडिपोज टिश्यू. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 18. केराटिनाइज स्ट्रैटिफाइड epithelial is found in. Keratinized stratified epithelial is found in the first one skin, second one hair, third one nails, and the last one all of the above. Which is the correct one? So the keratinized stratified epithelial जो होते हैं से epithelial tissue जो होते हैं ये found होते हैं skin में, hairs में as well as nails में. So the option D is the correct one, that is all of the above. Next question, question number 19. Adipocytes are called as. Adipocytes are called as. The first one fat cell, second one fibroblast, third one mast cell, and the last one goblet cell. Which is the correct one? Adipocytes are called as. क्या कहेंगे adipocyte को? तो adipocytes also known as fat cells. Adipocytes are also called as fat cell. Option A is the correct one. Next question, question number 20. White fibrous tissue is made up of protein known as. क्या कहेंगे उसे? Keratin, casein, collagen and lecithin. Which is the correct one? White fibrous tissue is made up of protein known as होता है that is collagen. Option B is the correct one. Which one is correct? Option B is the correct one. Next question, question number 21. The most abundant plasma proteins are. The most abundant plasma proteins are. The first one clotting factor, second one fibrinogen, third one albumin, and the last one globulins. Which is the correct one? The most abundant plasma proteins होता है that is albumin. Option C is the correct one. Next question, question number 22. Fibrinogen is synthesized by. Fibrinogen is synthesized by the first one liver, second one bone marrow, third one pancreas, and the last one gallbladder. Which is the correct one? Fibrinogen is synthesized by. तो किससे synthesize होता है? ये होता है that is liver. Option A is the correct one. Next question, option A is the correct one. Next question, question number 24, 23. Bleeding increases due to the deficiency of. किसके deficiency से bleeding increase होता है? The first one leukocyte, second one erythrocyte, then thrombocyte, and the last one T lymphocyte. Which is the correct one? Bleeding increases due to the deficiency of. तो ये होता है that is thrombocytes. जैसे thrombocytes. Option C is the correct one. Next question, question number 24. Zona fasciculata of suprarenal gland produces. Zona fasciculata of suprarenal gland produces. The first one sex hormone, second one adrenaline, third one glucocorticoid, and the last one mineralocorticoids. Which is the correct one? Zona fasciculata of suprarenal gland produces. क्या प्रोड्यूस कराता है? तो ये प्रोड्यूस कराता है that is glucocorticoids. Option C is the correct one. Next question, question number 24. Which of the following is not a leukocyte?
Which of the following is not a leukocyte? The first one, basophil. Second one, platelet. Third one, neutrophil. And the last one, eosinophil. Which is the correct one? Which of the following is not a leukocyte? तो कौन नहीं आता इनमें से leukocytes में? That is platelets. बाकी सब leukocytes में आते हैं. Option D is the correct one. Next question. Question number 26. किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन, कहाँ पे प्रेजेंट होता है किडनी शेप न्यूक्लियस? किस लुकोसाइट्स में प्रेजेंट होता है? द फर्स्ट वन मोनोसाइट, सेकेंड वन ग्रैनुलोसाइट, थर्ड वन लिम्फोसाइट एंड द लास्ट वन नन ऑफ द अबव. तो किडनी शेप न्यूक्लियस प्रेजेंट इन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है इन मोनोसाइट्स. कहाँ पे प्रेजेंट होता है? मोनोसाइट्स. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27. साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज, कहाँ पे होता है टी सेल का मैचुरेशन? द फर्स्ट वन थाइमस, सेकेंड वन थायरॉइड, थर्ड वन बोन मैरो एंड द लास्ट वन पैराथायरॉइड. विच इज़ द करेक्ट वन? साइट ऑफ टी सेल मैचुरेशन इज, तो कहाँ पे होता है? ये होता है थाइमस में. टी सेल का जो मैचुरेशंस होता है कहाँ पे प्रेजेंट कहाँ होता है? ये होता है थाइमस. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. Next question, question number 28. The blood circulation in human body was discovered by. The blood circulation in human body was discovered by. तो किसके द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था? किया गया था बाय विलियम हार्वे. ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. विलियम हार्वे. सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29. नॉर्मल ESR इन मेल इज, कितना होता है नॉर्मल ESR इन मेल? द फर्स्ट ऑप्शन 16 to 18 mm per hour, second one 10 to 20 mm per hour, third one 1 to 7 mm per hour and the last one 30 to 40 mm per hour. Which is the correct one? नॉर्मल ESR इन मेल, तो ये होता है दैट इज 10 to 20 mm per hour. कितना होता है? 10 to 20 mm per hour. ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30. माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से होता है माइक्रोसाइटिक एनीमिया? द फर्स्ट वन आयरन, सेकेंड वन फॉलिक एसिड, थर्ड वन विटामिन B12 एंड द लास्ट वन ऑल ऑफ द अबव. सो विच इज द करेक्ट वन? माइक्रोसाइटिक एनीमिया इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, किसके डेफिशिएंसी से होता है? तो ये होता है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट आपको कुछ इम्पॉर्टेंट बताना है. वेट फॉर. अगर हमें क्या करना है, हार्ट फंक्शन मेजर करना है. हार्ट के बारे में अगर हमें हार्ट के अगर फंक्शंस को मेजर करना है तो क्या करना होगा? सो क्या कहा था? हार्ट फंक्शन अगर देखना है तो हमें किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है? तो हम क्या करते हैं? ECG. ECG क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. क्या मेज़र कराता है? हार्ट फंक्शंस. जो प्रॉब्लम है हार्ट फंक्शंस की, हम किससे देख सकते हैं? ECG से. दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. सेकेंड वन इज दैट EEG. सेकेंड वन इज दैट EEG. EEG क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. क्या होता है? इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. एनसेफेलोग्राम. ठीक है. क्या फंक्शन मेजर करेंगे? ब्रेन फंक्शन मेजर करेंगे. थर्ड वन, अगर मसल फंक्शन के बारे में जानना है तो क्या यूज़ करेंगे? EMG. क्या करेंगे? EMG. दैट इज इलेक्ट्रोमायोग्राफी. क्या होता है? इलेक्ट्रोमायोग्राफी. अगर आई फंक्शन के बारे में जानना है फंक्शन, तो क्या यूज़ करेंगे? ERG. दैट इज इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम. दैट इज ERG, इलेक्ट्रो रेटिनोग्राम. अगर नर्व फंक्शन के बारे में जानना है तो ENG. दैट इज इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी. ENG दैट इज इलेक्ट्रो न्यूरोग्राफी. इलेक्ट्रोग्राफी में क्या, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं हम? ECG का यूज़ करते हैं. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या करते हैं? ECG. क्या करते हैं इसमें? रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट. क्या करते हैं? रिकॉर्ड करते हैं इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. टू रिकॉर्ड द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट. एंड आपको पूछा जाता है
ये तो हुआ आपका हार्ट एंड ब्रेन के बारे में। और आपको पूछा जाता है कि आपको लार्जेस्ट वेन पूछा जाता है। मोस्ट लार्जेस्ट वेन क्या होती है? तो ये होती है इन्फेरियर वेना केवा। क्या होती है? इन्फेरियर वेना केवा, लार्जेस्ट वेन। अगर लार्जेस्ट आर्टरी पूछा जाए तो लार्जेस्ट आर्टरी होती है दैट इज एओर्टा। क्या होती है? एओर्टा। स्मॉलेस्ट बोन क्या होता है? स्मॉलेस्ट बोन स्टेपिस, जो कि अपने कान में प्रेजेंट होता है, लोकेटेड इन द मिड ईयर। लार्जेस्ट बोन क्या होता है? तो लार्जेस्ट बोन होता है हमारा फीमर, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है? थाई बोन होता है। क्या होता है? थाई बोन होता है। लार्जेस्ट बोन इन हिप अगर पूछा जाता है, लार्जेस्ट बोन इन हिप अगर पूछा जाता है तो ये होता है दैट इज इलियम। क्या होता है? इलियम। लार्जेस्ट हिप बोन अगर पूछा जाता है, लार्जेस्ट बोन इन हिप अगर पूछा जाता है तो ये होता है इलियम। ठीक है। अगर लार्जेस्ट बोन इन फुट पूछा जाता है, अगर लार्जेस्ट बोन इन फुट पूछा जाता है तो ये होता है दैट इज कैल्कैनस। क्या होता है? कैल्कैनस, कैल्कैनियस। ठीक है। लार्जेस्ट अगर ग्लैंड पूछा जाता है तो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है दैट इज लीवर। क्या होता है? लीवर। अगर स्मॉलेस्ट ग्लैंड पूछा जाएगा तो ये होता है दैट इज पिनियल ग्लैंड। क्या होता है? पिनियल ग्लैंड। अगर लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो ये होता है पैनक्रियाज। क्या होता है? पैनक्रियाज। लार्जेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो लीवर, स्मॉलेस्ट ग्लैंड अगर पूछा जाए तो पिनियल ग्लैंड, लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड अगर पूछा जाता है तो दैट इज होता है पैनक्रियाज। अगर आपको बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड पूछा जाता है तो ये होता है पैनक्रियाज। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन इन अवर बॉडी होता है दैट इज फीमर। लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट बोन क्या होता है हमारे बॉडी का? फीमर। ठीक है। लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन क्या होता है आपको पता है? लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन, आपको कमेंट करना है कि लार्जेस्ट ह्यूमन प्रोटीन क्या होता है। ठीक है। देन लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट नर्व इन ह्यूमन बॉडी क्या होता है? तो ये होता है दैट इज सियाटिक नर्व। क्या होता है? सियाटिक नर्व। लॉन्गेस्ट एंड लार्जेस्ट नर्व। ठीक है। देन इरेगुलर अगर बोन पूछा जाता है तो ये होता है दैट इज स्पाइन। क्या होता है? स्पाइन। इरेगुलर बोन अगर पूछा जाता है तो ये होता है स्पाइन। देन डैगर शेप बोन अगर पूछा जाता है तो ये होता है स्टर्नम। क्या होता है? स्टर्नम। डैगर शेप बोन अगर पूछा जाता है तो ये होता है स्टर्नम। बैट शेप, बैट बोला है, BAT बैट, बैट शेप अगर बोन पूछा जाता है तो ये होता है स्पेनॉइड। क्या होता है? स्पेनॉइड। यल शेप बोन पूछा जाए तो ये होता है पैलाटाइन बोन। क्या होता है? पैलाटाइन बोन। हॉर्स शेप बोन पूछा जाएगा तो ये होता है हायोइड बोन। ठीक है। फ्लैट शेप अगर बोन पूछा जाएगा तो फ्लैट शेप बोन क्या होता है? तो ये होता है स्टर्नम। और क्या बोला था स्टर्नम के बारे में? डैगर शेप बोन भी बोला जाता है और फ्लैट शेप बोन भी बोला जाता है, दैट इज स्टर्नम। देन फर्स्ट वर्टिब्री पूछा जाता है आपको मोस्ट ऑफ टाइम, तो फर्स्ट वर्टिब्री में क्या आता है? ये आता है दैट इज एटलास। क्या आता है? एटलास। एंड सेकेंड वर्टिब्री में क्या आता है? एक्सिस। क्या आता है? एक्सिस। ठीक है, गॉट इट। देन आपको वेरियस टाइप ऑफ डिसीज के बारे में भी पूछा जाता है, जैसे कि ग्वाइटर किससे होता है? तो ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन के, ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्वाइटर किससे होता है? ड्यू टू एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड। ग्रेव्स डिसीज क्या होता है? तो क्या होता है? थायराइड डिसऑर्डर होता है। देन आपको और क्या पूछा जाता है? और पूछा जाता है आपको क्रैनियल नर्व के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि ऑल्फैक्टरी नर्व किसके बारे में, क्या फंक्शन होता है ऑल्फैक्टरी नर्व का? तो ऑल्फैक्टरी नर्व का फंक्शन होता है दैट इज स्मेल। ऑप्टिक का क्या होता है? तो ऑप्टिक का होता है विजन। ऑप्टिक किसके लिए होता है? विजन। ऑकुलोमोटर किसके लिए होता है? अकोमोडेशंस एंड लाइट रिफ्लेक्स के लिए होता है, दैट इज ऑकुलोमोटर। देन फेशियल में क्या होता है? फेशियल क्रैनियल नर्व में क्या होता है?
सेंसेशन ऑफ टेस्ट, सलाइवरी सिक्रेशन, फेशियल एक्सप्रेशन, ये किस में आते हैं? फेशियल नर्व्स में. देन ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलो कॉक्लियर में क्या आता है? तो हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. वेस्टिबुलो कॉक्लियर में क्या आता है? हियरिंग एंड इक्विलिब्रियम. वैगस में क्या आता है? तो इसमें पैरासिम्पैथेटिक इफेक्ट ऑन ऑर्गन्स ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमिन, ये इसका फंक्शन होता है. देन हाइपोग्लोसल में क्या आता है? तो इसमें होता है टंग मूवमेंट. क्या होता है? हाइपोग्लोसल में टंग मूवमेंट होता है. एंड स्पाइनल एसेसरी में क्या होता है? इसमें होता है मूवमेंट ऑफ हेड एंड शोल्डर एज वेल वॉइस. ठीक है, ये किसका फंक्शन होता है? स्पाइनल एसेसरी का. तो आपको बताना है टोटल क्रैनियल नर्व कितने होते हैं. टोटल क्रैनियल नर्व कितने होते हैं. ठीक है, उसके बाद आपको पूछा जाता है मोस्ट ऑफ टाइम टाइडल वॉल्यूम के बारे में भी पूछा जाता है. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? तो टाइडल वॉल्यूम होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर टेकन इन और आउट. क्या ध्यान में रखना है? इन एंड आउट. द टोटल वॉल्यूम ऑफ द एयर टेकन इन एंड आउट, इन एंड आउट ड्यूरिंग द नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. ड्यूरिंग नॉर्मल क्वाइट ब्रीदिंग. टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? वैल्यू कितनी होती है इसके? 500 ml. कितनी होती है? 500 ml. उसके बाद टोटल लंग कैपेसिटी भी आपको पूछा जाता है. टोटल लंग कैपेसिटी तो क्या होता है? ये होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशंस. ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर द मैक्सिमम इंस्पिरेशन. इसका वॉल्यूम कितना होता? इसकी वैल्यू कितनी होती है? ये होती है नॉर्मल वैल्यू दैट इज 500 ml टू 6000 ml. कितनी? 6000 ml. ठीक है, वाइटल कैपेसिटी भी आपको पूछा जाता है. व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? तो ये होता है द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीथ आउट बाय द फोर्स एक्सपिरेशंस आफ्टर टेकिंग द फोर्स इंस्पिरेशन. क्या होता है? द वॉल्यूम ऑफ एयर कैन बी ब्रीथ आउट बाय द फोर्स एक्सपिरेशंस आफ्टर टेकिंग द फोर्स इंस्पिरेशंस. तो ये कितना होता है नॉर्मल वैल्यू? किसका बोला था अभी? वाइटल कैपेसिटी. कितनी होती है नॉर्मल वैल्यू? ये होती है 4330 ml इन एडल्ट मेल होता है एंड 3100 होता है इन एडल्ट फीमेल. ठीक है, नेक्स्ट आपको पूछा जाता है और डाइजेस्टिव फ्लूइड और ऑर्गन दिए जाते हैं एंड उसका एंजाइम या फिर उसका एक्शन भी पूछा जाता है. मोस्ट ऑफ टाइम एंजाइम पूछे जाते हैं. जैसे कि स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? जैसे कि स्टमक में क्या क्या प्रेजेंट होता है? HCl प्रेजेंट होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है, लिपेज होता है. किस में प्रेजेंट होता है? स्टमक में. सलाइवा में क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा अमाइलेज. देन पैनक्रियाज में क्या होता है? पैनक्रियाज में काइमोट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन, ये सब प्रेजेंट होता है किसमें? पैनक्रिया. तो ये सब आपको पूछा जाता है. ये भी आपको पढ़ के जाना है फॉर NFL एग्जामिनेशंस, RRB एग्जामिनेशंस. ठीक है, उसके बाद आपको हार्मोन भी पूछे जाते हैं. देन आपको कनेक्टिव टिश्यू, हार्डेस्ट बोन, ये सब पूछा जाता है. जैसे कि कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल क्या होता है? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल अगर आपको पूछा जाए तो ये क्या होता है? ब्लड. अगर आपको हार्डेस्ट कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल पूछा जाएगा तो ये होता है दैट इज बोन. मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड का अगर एग्जाम्पल पूछा जाए तो ये होता है दैट इज लिम्फ. क्या होता है? लिम्फ. इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने मिल सकते हैं इन एग्जामिनेशन. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे जो भी बचा अभी. और टर्म्स भी आपको याद रखने हैं. जैसे कि पेरीमीटर क्या होता है? व्हाट इज पेरीमीटर? तो पेरीमीटर होता है इंस्ट्रूमेंट ऑफ द आई एग्जामिनेशंस में यूज किया जाता है पेरीमीटर, जो कि फील्ड ऑफ विजन होता है. पेरीमीटर फॉर फील्ड ऑफ विजन. टोनोमीटर भी पूछा जाता है. टोनोमीटर किसके लिए यूज होता है? तो ये होता है इंट्राऑकुलर प्रेशर के लिए. इंट्राऑकुलर प्रेशर के लिए. ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं. गॉट इट? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. तब तक के लिए बाय बाय एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द सेशन. थैंक यू फॉर वॉचिंग.